پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ بڑے ہی جارحانہ انداز میں اور بڑی پیاری گفتگو، کمال کی گفتگو آپ مفتی صاحب کی سماعت کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے، دلی دعا ہے، یقین کریں کہ میری ملاقات بھی پہلی ہے اور میرے پروگرام میں تشریف بھی پہلی دفعہ لائے، اور دل کو اتنا سکون مل رہا ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایسے نوجوان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دین کا جو جھنڈا ہے، پرچم ہے، وہ ایسے نوجوان جذبے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند کریں گے۔ مفتی صاحب، میرا سوال بھی آپ کے ساتھ، ابھی ہم نے نعت بھی سنی ہے اور جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی ہم نے ابھی مکمل کرنی ہے۔ اگلا سوال بھی میں آپ سے کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل باعث کمالات ہے، یہ بھی میرا سوال ہے، اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے بات مکمل کرنی ہے اور ہم نے نعت بھی سننی ہے۔ جی تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ سلامت گزرا، کئی دنوں سے اس کو اس کا دوست نظر نہیں آیا، تو اس نے جو ہے وہ ادھر ایک دن رک گیا۔ بادشاہ سلامت شاہی سواری روک، کس کے لیے؟ اس غریب مزدور کے لیے، اس دیہڑی دار کے لیے، مزدور کے لیے رک گیا۔ وہ کس وجہ سے رکا؟ ذریعہ جو ہے وہ سلام تھا، اور سلام کی وجہ سے اس کے دل میں محبت تھی اور وہ رکا۔ اس نے رک کے دائیں بائیں والوں سے پوچھا، ادھر میرا ایک یار رہتا تھا، اس کا یہ حلیہ تھا، یہ انداز تھا اس کا، یہ اس چیز کی ریڑھی لگاتا تھا۔ بادشاہ ہو کر اس کو اس مزدور کی ہر چیز کا پتہ چل گیا۔ کس وجہ سے چل گیا؟ کہ وہ سلام کی وجہ سے تعلق اور محبت پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ بیمار پڑا ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کا گھر کا پتہ بتاؤ مجھے۔ کیا بات ہے، کیسے مقدس سے چمکے کہ وہ بادشاہ سلامت اس کے گھر کا ڈریس لے کے اس کے گھر میں جب پہنچا، اور بادشاہ کی شاہی سواری اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہے، دروازے پہ دستک بادشاہ دیتا ہے، وہ جب باہر آتا ہے بیماری سے نڈھال ہے، دیکھ کے حیران ہو گیا، پاؤں سے زمین نکل گئی، کہاں میں اور کہاں بادشاہ وقت میرے غریب خانے میں تشریف لے آیا ہے۔ تو بادشاہ کو کہنے لگا، بادشاہ مجھے آرڈر کر دیتے، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں، تو جو ہے ہم گزرتے تھے تو سلام کرتا تھا، ہمیں اچھا لگتا تھا، ہمارے دل میں ایک لگاؤ، ایک قلبی محبت پیدا ہو گئی، اب ہمیں سکون نہیں آتا جب تک تمہیں دیکھ نہ لیں۔ تو یہ تو ایک دنیا کا بادشاہ ہے، عارضی کرسی کا مالک ہے، جب یہ اس کو کوئی سلام کرے، اس کا تعلق اتنا بڑھ جائے، اپنی رعایا کے غریب شخص کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں چلا جائے، تو جو نبیوں کے سردار کو روز سلام کرے، تو پھر سرکار کی اس پہ کتنی مہربانی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نوازتے ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ امام بصیری کے پاس میرے آقا تشریف لائے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس میرے آقا تشریف لائے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے پاس میرے آقا تشریف لائے، ان کو کس قدر نوازا، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں بات کو طوالت کی طرف سے جو ہے وہ بچاتے ہوئے اور اپنے وقت کو کلوز کرتے ہوئے جو ہے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اس شخص نے عرض کیا کہ کیا آپ رسول اللہ ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اللہ کا ایسا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، میں اس کی بارگاہ میں دعا کر دوں تو اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ کیا بات ہے۔ اس حدیث میں غور کرنے سے یہ سارے مسئلے آج ہمارے حل ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف کو بیان کیا۔ صاحب کمال وہ ہے جو کمال والے محبوب کے اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، میں دعا کر دوں تو اللہ تم سے تکلیف کو دور کر دے گا۔ دوسری چیز جو سرکار نے اس حدیث میں فرمایا اگر تمہیں قحط سالی آ جائے، میں دعا کر دوں تو اللہ رب العزت تم پہ سبزہ کو اگا دے گا، سبحان اللہ، قحط سالی کو دور کر دے گا۔ اور تیسری چیز جو سرکار نے فرمایا اگر تم چٹیل میدان میں ہو اور یہاں فرمایا جنگ کے مقام پہ تمہاری سواری گم جائے، میں دعا کر دوں اللہ کی بارگاہ میں
तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी सवारी को वापस तुम्हारे पास लौटा दे। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औसाफ बयान फरमाए। और इस हदीस की शरह में अजीम हनफी मुहद्दिस मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इधर ये तीनों सीगे मुतकल्लिम के हैं, यानी सरकार अपनी जानिब निस्बत फरमा रहे हैं कलाम की। और फरमाया अगर इस पे जो है वो मुखातिब का सिगा इसको पढ़ा जाए, जबर पढ़ दी जाए पेश की बजाय, और फरमाया ये मुखातिब का सिगा बन जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। और ये फरमाया फिर इसमें जो है वो सिफत रब की होगी। और फरमाया मतलब ये होगा कि तू दुआ कर मेरे वसीले से तो अल्लाह तुझे तकलीफ को भी दूर कर देगा, कैसाली को भी दूर कर देगा, मेरे वसीले से दुआ करने की वजह से तेरी सवारी भी वापस लौटा दे। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये सरकार ने मसला हल फरमा दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब ये औसाफ सुने तो फिर कहने लगे या रसूलुल्लाह मुझे कुछ हिदायत कीजिए, जो आज का हमारा आखिरी सवाल है। तो उसमें मैं इंशाअल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे ही इसको मुकम्मल करूंगा। और इसमें हमने देखना है कि जो सरकार की हिदायत पे अमल करता है वो साहिब कमाल है, जो हजूर अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटके, सरकार की तालीमात से हटके इधर उधर होता है, वो जितना मर्जी अपने आप को साहिब कमाल कहता रहे, कमाल कमाल लिख के जो है वो दीवारें भर दे, पोस्टर भर दे, बैनर भर दे, पूरी दुनिया में ये चर्चे कर ले अपने, लेकिन हकीकत में साहिब कमाल नहीं हो सकता। साहिब कमाल वही है जो कमाल वाले महबूब की हिदायत पे अमल करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह मुझे कुछ हिदायत कीजिए। तो सरकार ने फरमाया तुमने कभी किसी को गाली नहीं देनी, कभी किसी को गाली नहीं देनी। अब देखें हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे बाबे बने हुए तो वो बैठे हुए माओ बहनों की गालियां दे रहे हैं और लोग कहते हैं कि ये तो पहुंची हुई सरकार है। तो हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग उनकी बारगाह में कहा गया कि एक शरीयत का शख्स जो है वो पैरवी नहीं करता, शरीयत का पाबंद नहीं है, तो उसके बारे में कहा गया ये पहुंचा हुआ है। तो फरमाने लगे हाँ पहुंचा हुआ है लेकिन जहन्नम में पहुंचा हुआ है। जो अल्लाह उसके रसूल के रास्ते को छोड़ के मंजिल चाहता है तो वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। रास्ता पाक नबी दा छड़ के जे कोई मंजिल पुगदा लख मेहनत एवें करिए ते कलर को ला उगदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हुजूर की हिदायत पे अमल से ही इंसान कमाल तक पहुंच सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत अता फरमाई कि किसी को गाली नहीं देनी, अब उन्होंने जो है ये अंदाज अपनाया कि कभी किसी आजाद को, गुलाम को, ऊंट को, बकरी को, जानवरों को भी गाली नहीं दे रहे। आज हमारे लोग जानवरों को गाली देते हैं, तरह तरह की गालियां देते हैं, बंदों को गालियां देते हैं, गुलामों को गालियां देते हैं, और गाड़ी पे जा रहे गाड़ी को गाली दे देंगे, और आगे से कोई चीज आ रही उसको गाली दे देंगे। तो ये सरकार ने मुतलकन गाली देने से मना फरमा दिया। और दूसरी चीज सरकार ने फरमाई अच्छी बात को हकीर न समझना। सुभान अल्लाह, किसी अच्छी बात को हकीर न समझना। आज हम ये गौर करें, मैं और आप, किसी जगह पे दर्स से कुरान दिया जा रहा है, अच्छी बात है, हम उसको हकीर समझ के उठ के चले जाते हैं। नहीं, हमें बैठना चाहिए, अल्लाह के कुरान का दर्स सुनना चाहिए। और हदीस रसूलुल्लाह का दर्स दिया जा रहा है तो हम उठ के चले जाते हैं। हदीस रसूलुल्लाह के दर्स की जिन्होंने कदर की वो साहिब कमाल हुए। क्योंकि आज हमारा मौजू ये है, हजरत इमाम मालिक मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, आपके पास कोई आता है मसला पूछने के लिए, आप गुलाम को भेजते हैं जाओ इससे पूछो, मसला पूछने आया या हदीस लेने आया है। तो अगर कहता कि मसला पूछने आया तो आप फौरन दरवाजे पे जाते, मसला बता देते। अगर कहता कि हदीस लेने आया, आप फरमाते हैं इसको को मस्जिद नबवी में बैठ जाए, और आप फरमाते तख्त लगा दो। अब आप गुस्ल खाने जाते, गुस्ल फरमाते, नया लिबास पहनते, खुशबू लगाते और तख्त पे आके बैठते और फरमाते हैं इस अंदाज में मैं अपने नबी के वो अल्फाज बयान करूंगा जो मेरे नबी के होंठों को चूम के निकले। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये अंदाज है साहिबाने कमाल का। तो जो हदीस का इतना अदब करते हैं वो कुरान का कितना अदब करते हैं। तो सरकार ने फरमाया किसी भी अच्छी बात को हकीर ना जानना, हकीर न समझना। ये दूसरी वसीयत सरकार ने फरमाई। और तीसरी वसीयत फरमाई कि अपने भाई के साथ कुशादा रूह से पेश आना, कलाम करना, ये भी अच्छी बात है, ये भी नेकी की बात है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी नेकी करार दिया। और चौथी चीज जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये थी, फरमाया अपना तहमत जो है वो आधी पिंडली तक ऊपर किए रखना, या फिर
टखनों तक ऊपर किए हुए रखना। और अब मसला ये है कि हम नमाज के अलावा या नमाज के अंदर हमारे जो है टखने वो छुपे हुए होते हैं मर्दों के, और औरतों के ऊपर होना शुरू हो गए, उल्टा निजाम चलना शुरू हो गया। तो ये बड़ा गलत है। औरतों के टखने जो हैं वो ढके हुए होने चाहिए, पहुंचे इतने नीचे होने चाहिए कि टखने नजर नहीं आने चाहिए, और मर्दों के टखने नजर आने चाहिए, पहुंचे ऊपर होने चाहिए। और ये इस अंदाज में अगर बंदा हालत नमाज में ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेता है तो इस तरह हुक्म शरीयत ये है कि नमाज मकरूह तहरीमी होती है, वाजिबुल इआदा होती है। और अगर तकब्बुर की वजह से बंदा मैं मुफ्ती साहब थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, टाइम भी कम है। अभी जैसे कि हम नमाज पढ़नी स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी शलवार को यानी कि ऊपर कर लेते हैं, तो क्या ये एक तो ये है कि उठा के ऊपर कर लेना, अच्छा, ऐसे फोल्ड किए बगैर, अच्छा फोल्ड किए बगैर वैसे ऊपर उठा लेना, ये मसला बड़ा अहम है। जी, बात बड़ा अहम मसला है, चूंकि हदीस के अंदर आया ये, तो इसी ज़िमन में मैंने इसकी वजाहत करना भी जरूरी समझी है। तो एक ये कि उठा के ऊपर कर लेना वो दुरुस्त है, नमाज पढ़ने से पहले। वो कफ़े सौब में नहीं आता, कफ कहते हैं लपेटने को और सौब कहते हैं कपड़े को। तो कपड़े को लपेटना मना है, कपड़े को लपेट के अंदर फोल्ड ना किया जाए, ना ऐसे ऊपर से और ना ही नीचे से। बाद पैंट जिन्होंने पहनी होती है तो वो नीचे से फोल्ड कर लेते हैं, नीचे से भी ना फोल्ड की जाए, ऊपर से भी ना। इसकी कबाहत उसके लिए है जो तकब्बुर की वजह से अपनी कपड़े को नीचे रखता है, उसके लिए कबाहत है। अगर तकब्बुर की नीयत से नहीं है, वैसे ये इत्तेफाकी अमर है, तो फिर ये खिलाफे औला है, फिर ये वईद नहीं है उसके लिए। तो ये वईद उसके लिए है कि जो कि तकब्बुर की वजह से पहुंचे अपने जो है वो ढक के रखता है। तो आगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की वजाहत फरमाई, और आखिरी हिदायत जो सरकार ने फरमाई वो ये है, फरमाया कि तुम्हें अगर कोई गाली दे, तुम्हें अगर कोई गाली दे, पहली वसीयत ये थी कि गाली न देना, और आखिरी वसीयत ये की, फरमाया तुम्हें अगर कोई गाली दे और उस ऐब से तुम्हें आग दिलाए जो कि तुम्हारे अंदर पाया जाता है, वो जानता है, उससे वो तुम्हें आग दिला रहा है, शर्मिंदगी दिला रहा है, तुम्हारा ऐब उछाल रहा है, तो फरमाया तुम जो उसका ऐब जानते हो वो, फरमाया तो वो जो तुम उसका ऐब जानते हो, जो उसमें है तुम जानते हो, उससे उसे आग तुम न दिलाओ। वो जो दिला रहा है वो अपने किए का खुद जवाबदेह है, इसका वबाल उस पे है। और आज इस चीज को सामने रखें और देखें, अगर इस चीज पे हमारा अमल हो जाए, हम एक दूसरे के ऐबों को ना उछालें, गाली गलौज ना करें, अहसन अंदाज में गुफ्तगू करें, तो फिर हमें जो है वो कमाल हासिल हो सकता है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मना फरमाया ऐब उछालने से, ये है जात के हवाले से कि जाती तौर पे अगर कोई ऐब पाया जा रहा है, जाती रंजिश है, उस बिना पे एक दूसरे के ऐब को ना उछाला जाए। हाँ, अगर कोई दीन के मामले में बात करता है तो फिर उसको जो है जमी ऐब उसके नंगे कर दिए जाए, उसको बयान कर दिया जाए, उछाल दिया जाए। जैसे कुरान की सूरत नून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलीद बिन मुगीरा के 10 ऐब बयान किए और आखिर में फरमाया कुतुल बाद ज़ालिका ज़नीम, कि ये हराम का तुख्म है। तो इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऐब को उछाला। जाती तौर पे किसी का ऐब ना उछालना कमाल है, और अगर कोई अल्लाह के महबूबों को ऐब लगाए तो उससे बदला लेना ये भी कमाल है। दुआ है रब ताला हमारी अपना ऐसा साहब एक अशार जो है आप जो है ना हमारे नाज़रीन की समाअत में करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नेमतें बांटता जिस्म शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया,
साथ ही जी नाज़रीन, शाह जो है नाते रसूल मकबूल के एक अशार ही हम पेश कर सके हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब की बात इतनी कमाल थी कि मुझे मेरे कैमरामैन भाई जो है वो भी कह रहे थे कि मुफ्ती साहब की बात को कंटिन्यू करें, क्योंकि वो बात आगे बढ़ते जाएं। और इतनी कमाल की गुफ्तगू थी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए और मजीद इनको जो है इस तरह दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह हम मुफ्ती साहब से आज पहली मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह आपसे नाज़रीन मुलाकात करवाते रहेंगे। तो नाज़रीन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, हमारी टीम, हमारे मेहमान, इनके जितने भी अबा और जदाद दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह ताला इस अशर नजात के सदके उनकी बख्शिश फरमाए। जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है। कल तक के लिए अपने मेजबान हाफिज मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। दियार नबी